Good morning, students. How are you all? Today we are going to start our next chapter of history, that is chapter 4, Tribal Society during the British rule. You might thinking that why ma'am is taking again and again history, because all these chapters are connected with each other, beta. You can understand it very easily, and small chapters are there. That's why we are taking, and many according to course history is having 13 chapters now, beta. So first I try to cover 4-5 chapters of history which are connected with each other. So we are taking fourth chapter of history, that is the tribal society during the British rule. In last chapter we saw the condition of peasants, poor farmers of India under the British rule. In this chapter we will see the condition of tribal people under the British rule. Now first of all, what is tribes? Group of people who share common language, culture, territory are called tribes or Adivasis. We used to call these tribal people as Adivasis, who has same culture, same territorial boundary. Territorial boundaries we means beta, they used to reside in forest areas, forest places. They are basically related to the forest and share common language, common cultures, common identity. Okay, and some examples are given in your book of tribal people, that is Mundas, Santhals, Orios. These three tribal communities lives in Chota Nagpur region, whereas Begas, Gonds, Konds in central India, and Kashis and Nags in northeast India. So these some examples are given of tribal people who reside in different parts of India, and basically they are called as Adivasis, who used to live in forest. But earlier they used to live in forest. They are completely confined or limited to the forest area. They are totally dependent on the forest area. Okay, they are not the part of the main society. आज जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं ना बेटा, अर्लियर टाइम में उनको मेन सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं था. वो सिर्फ जंगलों में रहते थे, जंगलों की चीज़ों को यूज करके जो है अपनी लाइफ जो है पूरी स्पेंड करते थे. बट nowadays in modern times, slowly Adivasis are coming to or becoming the part of the mainstream of the society. अब आदिवासीज ने जंगल छोड़ के मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर दिया है, वहाँ की कल्चर को, उनकी थिंग्स को जो है अडॉप्ट करना शुरू किया है. बट इफ वी आर सीइंग द अर्ली टाइम, देन दे आर टोटली द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट. ठीक है. एंड व्हेन ब्रिटिशर्स, अब बेसिकली अपना चैप्टर क्या है कि ब्रिटिशर्स ने क्या अफेक्ट किया ट्राइबल पीपल की लाइफ को. तो व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, तो दे अफेक्ट द ट्राइबल पीपल्स लाइफ वेरी बैडली. The tribal peoples face very economic or social hardship during the period of Britishers. How Britishers affected? Britishers came to India for earning revenue, for earning money, for basically raw material for their industries. जो उनकी कंट्रीज में इंडस्ट्रीज चल रही थी, उसके लिए ब्रिटिशर्स को किन चीज़ों की जरूरत होती थी? रॉ मटेरियल की. और रॉ मटेरियल कहाँ से जाता था? इंडिया से. प्लस ब्रिटिशर्स को किसकी जरूरत होती थी? मनी की. मनी कहाँ से लेते थे? वो इंडिया के लोगों पर रेवेन्यू चार्ज करके उनसे लेते थे, और इस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कैप्चर किया था. लास्ट चैप्टर में हमने देखा उन्होंने पीजेंट से जो है रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. तो पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वो क्या चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है पीजेंट्स बने, खेती करें. जितने ज़्यादा पीजेंट्स होंगे उतने ज़्यादा से वो इजीली रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं. तो ऐसे में जो ट्राइबल पीपल जो इसमें इन्वॉल्व थे, फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, उनसे उन्होंने लैंड छीनना शुरू किया या उनको अल्टीमेटली फोर्स करना शुरू किया कि वो ब्रिटिशर्स के लिए काम करें. उनसे हाई रेवेन्यू जो है लेना शुरू किया. प्लस उनकी ज़मीनें, जिन फॉरेस्ट में वो रहते थे, जिन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे वो डिपेंडेंट थे बेटा, वो एरिया ब्रिटिशर्स ने जो है कन्फाइंड कर दिया, उन पर कब्जा कर लिया. और इस तरह से हम देखेंगे कि उनकी लाइफ को, ट्राइबल पीपल की लाइफ को ब्रिटिशर्स ने बहुत हार्डली हिट किया. इससे रिलेटेड चैप्टर आपका ट्राइबल पीपल से रिलेटेड पेस्ट्रलिज्म एक चैप्टर आपका 9th में आएगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हिस्ट्री का पार्ट है, वो आप नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है बेटा. अभी हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है अपना सोशल कंडीशंस ऑफ ट्राइब्स. तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल कंडीशन ऑफ ट्राइबल पीपल और सोशल लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल, तो देयर इज नो कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑन among the tribal people. Like in our society, in our religion, we are having caste based discrimination कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैश्य है. इस तरीके से हमने डिस्क्रिमिनेशन बना रखे हैं हमारे समाज में हाई क्लास और लो क्लास सोसाइटी के. जबकि ट्राइबल्स की अगर हम बात करें तो देयर इज नो सच डिस्क्रिमिनेशन अमंग ट्राइबल पीपल. व्हाट वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ट्राइबल पीपल, दैट दे आर
having common language, common culture, common territories. They are not like us people, because we are having different culture, different identity, different कह सकते हैं caste, religions, but tribal people have no such discrimination. So this is about the condition of social condition of tribal people. Now let's move to second point, that is economic condition of tribal people. Economic condition मतलब monetary condition of tribal people. Monetarily या कमाने के लिए वो किस चीज़ पर डिपेंडेंट थे, तो वो डिस्कस करने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्राइबल पीपल. वन ट्राइबल पीपल जो परमानेंटली हम कह सकते हैं सेटल्ड लोग थे, दे डोंट यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड थे, परमानेंट वर्क करते थे, तो दे आर कॉल्ड परमानेंट ट्राइब्स. वेयर एज अदर जो ट्राइब्स जो एक जगह पर नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जो है घूमते रहते थे, जैसे कि राजस्थान के बंजारा लोग होते हैं ना, बंजारे क्या होते हैं, एक जगह नहीं रुकते, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. तो ट्राइबल कम्युनिटीज में भी ऐसा था कि कुछ जो ट्राइब्स थे वो नॉमेड्स थे. नॉमेड्स किसको बोलते हैं, दोज ट्राइब हु यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, that tribe is called as nomads. So two kinds of tribes were there who are doing the permanent occupation, at the same time other tribes who are nomads who used to move from one place to another. Now economic, monetarily वो किस तरीके से अर्न करते थे, तो हम सारी एक्टिविटीज पढ़ेंगे अभी ट्राइब्स की कि वो क्या क्या वर्क करते थे, कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करके अर्न करते थे. तो नंबर वन एक्टिविटीज परफॉर्म वी आर गोइंग टू सी. नंबर वन एक्टिविटी शिफ्टिंग कल्टिवेशन. ठीक है, कुछ जो ट्राइबल पीपल है वो क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टिवेशन. शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज रिलेटेड टू फार्मिंग. ठीक है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज जूमिंग, जूम कल्टिवेशन और स्लैश ऑफ बर्न फार्मिंग. बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, समझो. इसमें किस तरह से फार्मिंग करते थे, जो व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि ट्राइबल पीपल यूज्ड टू रिसाइड इन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में वो क्या करते थे, फॉरेस्ट का एक पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड, पर्टिकुलर हिस्सा, दे यूज्ड टू कट द ट्रीज और बर्न द ट्रीज, और उस पर्टिकुलर प्लेस पे, जैसे पूरा फॉरेस्ट है, ठीक है, तो फॉरेस्ट के एक पर्टिकुलर हिस्से में जो ट्रीज है उनको कट करके बर्न करके इस लैंड पे वो क्या करते थे, फार्मिंग करते थे, और कुछ साल तक लगातार यही फार्मिंग करते रहते थे. एज सुन एज दे रियलाइज द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी, ठीक है, दे यूज टू मूव टू अनदर पैच ऑफ लैंड. नाउ दे क्लियर ट्रीज फ्रॉम हियर, बर्न इट एंड यूज, इसको छोड़ देते थे, अब इस लैंड पे वो फार्मिंग करना शुरू करते थे. तो पूरे फॉरेस्ट को नुकसान नहीं करते थे, इससे कहीं ना कहीं जो है कोई नुकसान नहीं हो रहा है, नेगेटिव साइड नहीं है. दिस इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट. कैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट, इससे जो है एक ही लैंड पे अगर हम बार बार फार्मिंग करते रहेंगे तो क्या होगा, सॉइल लूज इट्स फर्टिलिटी. ठीक है, तो फॉर मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल दिस काइंड ऑफ फार्मिंग इज वेरी गुड. स्लैश एंड बर्निंग, जूमिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये तीनों एक ही फार्मिंग के नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो लाइक दैट दे यूज्ड टू डू द farming. So this is one kind of occupation or economic activities of the tribal peoples at the time of Britishers. So that is shifting cultivation. Now second type of activity what they used to perform is hunting and gathering. Hunting of animals or gathering of forest products like fruits, medicines, other plants they used to gather from forest and used to sell in the nearby मार्केट. ठीक है, उनको बेचकर जो उनको कैश मिलता था उस वो एक तरीके से उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी. इन चीज़ों को गैदर करके वो अपनी नीड भी फुलफिल करते थे. समटाइम दे यूज्ड टू फॉलो द बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम मतलब एक्सचेंजिंग सिस्टम. मतलब अगर एक ट्राइब के पास मिल्क है और दूसरे के पास हनी है, उसको हनी की जरूरत है, उसको मिल्क की जरूरत है, तो वो आपस में एक्सचेंज कर देते थे. तो जो एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम. तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो ट्राइबल पीपल है वो अपनी लाइफ जो है इकोनॉमिकली कैसे स्पेंड करते थे. फर्स्ट एक्टिविटी दे यूज्ड टू डू फार्मिंग थ्रू शिफ्टिंग कल्टीवेशन. इट इज अ काइंड ऑफ फार्मिंग. सेकेंड, हंटिंग एनिमल्स और एनिमल स्किन्स को सोल्ड करते थे. सेकेंड थिंग इज गैदरिंग ऑफ फ्रूट्स, फूड प्रोडक्ट्स एंड सेलिंग इन द मार्केट. Or through barter system they used to fulfill their needs or requirements. Third kind of activity what tribal people used to perform is herding and rearing. This is related to animals. Some tribal people used to have ग्रुप ऑफ एनिमल, sheep, cows, goats. ठीक है, तो उसका जो मिल्क है वो सेल करके वो लाइफ स्पेंड करते थे. अर्लियर व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि टू टाइप्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज आर देयर. सम ट्राइबल्स यूज्ड टू लिव इन अ परमानेंट प्लेस, एट द सेम टाइम अदर्स आर नॉमेड्स. ठीक है,
बंजारों का एग्जाम्पल दिया। तो ये जो हर्डिंग और रियरिंग करते थे ना जो ट्राइबल पीपल, ये बेसिकली नॉमेड्स होते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता था, एनिमल्स। और एनिमल क्या है, जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया में वो चेंज होती रहती है, कभी सर्दी गर्मी, और एनिमल्स जो है एक पर्टिकुलर टाइप के एनिमल को एक ही तरह की क्लाइमेट की जो है ज़रूरत होती है। जैसे बफेलो, उसको स्वैम्पी लैंड पसंद होता है, इसी तरीके से। तो फिर ये जो हर्डिंग और रियरिंग करने वाले ट्राइबल्स है ना बेटा, ये नॉमेड्स होते हैं। ये कभी भी एक जगह पे नहीं रहते, ये हर समय अपने एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक चेंज मूव करते रहते हैं। ये डिटेल में आप 9th क्लास में पढ़ोगे बेटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फोर्थ एक्टिविटी जो ट्राइबल पीपल कर रहे थे, दैट इज सेटल्ड एग्रीकल्चर, जो मैंने आपको बताया। जो हर्डिंग और रियरिंग कर रहे हैं, एनिमल्स पालते हैं, वो होते हैं नॉमड। और जो परमानेंट एक ही जगह सेटल्ड होते हैं वो होते हैं परमानेंट ट्राइब्स। दे यूज टू डू सेटल्ड एग्रीकल्चर, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। और बेसिकली जो सेटल्ड एग्रीकल्चर है वो क्लैंस में मतलब ग्रुप्स में करते हैं। यूं नहीं होता भाई, ट्राइबल में मैंने कहा कुछ डिफरेंस नहीं होता था, वो कॉमन कल्चर आइडेंटिटी एक साथ मिलजुल कर रहते थे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं। उनमें ये नहीं होता था कि ये मेरी जमीन है, ये तेरी जमीन है। वो सारा जंगल को सब ट्राइब मिलकर एक दूसरे की जमीन मानते थे। तो जब वो सेटल्ड एग्रीकल्चर करते थे ना बेटा, तो फिर पूरा ग्रुप मिलके एक साथ एग्रीकल्चर कर रहा है, और फिर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द फैमिली, जिस ट्राइब की फैमिली की जितनी जरूरत है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। और धीरे धीरे आगे जाके अपन पढ़ेंगे मुंडास और संथल्स, जो दो ट्राइबल कम्युनिटीज थी, उन्होंने बहुत लार्ज लेवल पे जो है एग्रीकल्चर करना शुरू किया। तो दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द ट्राइबल पीपल। सोशल कंडीशन, नो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ट्राइब्स कौन, आदिवासी। दो तरीके के कौन से, जो परमानेंट एक जगह पे ही रहते हैं, और दूसरे जो नॉमेड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन ट्राइबल communities, ठीक है। तो I have already told you that the impact of British rule was very extreme, very जो है the tribal people led a very hard life under the British rule. Now at different level, how Britishers affected? Number one, जो लैंडलेस ट्राइबल्स, जो लैंडलेस जिनकी अपनी जमीन ही नहीं थी, पुअर स्मॉल ट्राइबल्स थे, उन पे ब्रिटिशर्स का क्या इम्पैक्ट आया? ब्रिटिशर्स unnecessarily forced them to work on their own farms as a farm laborers and to grow cash crops. Cash crops अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, अगर if you remember, indigo, coffee, tobacco, tea, all these are cash crops, ठीक है। And these cash crops are required to Britishers at their own farms in England. Means these as a raw material they need at their own farms. So now Britishers force these landless tribal people to grow cash crops or to work as laborers in their own farm, and they give them very low wages and treated them very harshly. So this is the effect to the landless tribe. Now high revenue from whom? Those tribes who are having their own land now. From some tribes, some tribes who are having small lands now, Britishers grabbled or snatched their land, उनसे उनकी जमीनें छीन ली। Whereas some tribes who are having large pieces of land ना, उनसे उनकी जमीनें नहीं छीनी गई, बट उनको फोर्स किया गया कि grow more and more crops for Britishers plus give high revenue to Britishers. If the tribals are unable to pay the high revenue to Britishers, then Britishers snatch or grabble their land, ठीक है। तो ultimately this was the effect on कह सकते हैं high landed tribe peoples. Then third point, settled agriculture. I have told you that two kinds of tribes are there. One used to move from one place to another, that is nomadic tribes. Now what Britishers did with them? Britishers forced them to live at particular place, no need to move from one place to another, and this give negative impact on the lives of their animals. Their animals started dying because they can't exist on the according to the atmospheric condition. Maybe ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको बताया नेक्स्ट ईयर यू आर हैविंग द सेम चैप्टर एट अ वेरी लार्ज लेवल, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो उसका कुछ पोर्शन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रही हूँ बेटा आपको कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको एक जगह पर जबरदस्ती एनिमल्स के साथ रोका, तो एनिमल्स क्या उस क्लाइमेटिक कंडीशन को सर्वाइव नहीं कर पाए और उनके एनिमल्स डाई
होने लग गए। प्लस ब्रिटिशर्स व्हाट दे सेड कि जो ट्राइब्स जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू डिक्लेयर देम एज ए क्रिमिनल ट्राइब्स। तो इस तरीके से दे अफेक्ट द लाइफ ऑफ नॉमेडिक ट्राइब्स। देन चेंज इन फॉरेस्ट लॉ, फॉरेस्ट लॉज और फॉरेस्ट रूल में ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे चेंजेस लाए। कैसे चेंजेस लाए? ब्रिटिशर्स अर्लियर जो है ट्राइबल पीपल वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट। नाउ ब्रिटिशर्स फोर्स देम कि नॉट टू यूज द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब ब्रिटिशर्स ने जो फॉरेस्ट को अपने अंडर में कब्जे में कर लिया। तो ट्राइबल्स तो टोटली फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट की चीजें नहीं लेने देंगे, फॉरेस्ट में मूव ही नहीं करने देंगे ब्रिटिशर्स। तो इससे उनकी कंडीशन पे बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। देन रोल ऑफ ट्रेडर्स, अब ये तो ब्रिटिशर्स उनके साथ कर रहे हैं, फर्दर जो है उन्हीं के देश के लोग जो है ट्रेडर्स, अब जब ये ट्राइबल बाजार में कुछ खरीदने जाते थे क्योंकि उनको फॉरेस्ट की चीजें यूज नहीं करने दी जा रही है, तो ये ट्रेडर्स जो है इन ट्राइबल्स को बहुत ही हाई रेट में चीजें सेल आउट करते थे। फर्दर अगर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, वो मनी लेंडर्स के पास जो है लोन लेने जा रहे हैं, तो मनी लेंडर्स उनसे बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं, जिससे वो एक डेप्ट ट्रैप मतलब कर्जे की साइकिल में फंस के रह जाते हैं और बहुत बुरी तरह से हार्ड हिट होते हैं। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स के आने से ट्राइबल की लाइफ अफेक्ट हुई। ब्रिटिशर्स नहीं बल्कि इंडिया के ट्रेडर्स ने और मनी लेंडर्स ने भी ब्रिटिशर्स को बहुत जो है ट्राइबल पीपल्स को बहुत ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाया, बिकॉज दे आर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स, लाइक अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के फेवरेट थे, उनको डर लगता था कि अगर हम ब्रिटिशर्स के फेवर में नहीं जाए तो ब्रिटिशर्स हम पर भी जो है बुरा प्रभाव डालेंगे। ठीक है। ट्राइबल्स चीफ मतलब सरदार होते थे ट्राइबल्स के, तो जिनको वो हेड मानते थे, हेडमेन्स होते थे ट्राइबल्स के, जो अपनी कम्युनिटी का, जैसे राजा होते थे ना पुराने टाइम में, वैसे ट्राइबल्स के होते थे ट्राइबल चीफ्स। तो ब्रिटिशर्स के आने से उनकी लाइफ पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया, उनसे उनकी पोजीशन, उनकी पावर छीन ली गई। हालांकि उनको वहीं पे रखा, ट्राइबल कम्युनिटीज का सारा देखभाल कौन करेगा? ट्राइब्स, पर अल्टीमेटली किससे पूछ के करेगा? ब्रिटिशर्स। तो ट्राइबल चीफ के ऊपर कौन आ गया? ब्रिटिश पावर। तो कहीं ना कहीं उनकी पावर, उनकी जो कह सकते हैं रेस्पेक्ट में भी कमी आई अंडर ब्रिटिश रूल। और अल्टीमेटली जब बहुत ज्यादा जो इम्पैक्ट बढ़ गया ब्रिटिशर्स का, नेगेटिव इम्पैक्ट ट्राइबल पीपल पे, तो क्या होगा? तो किसी इंसान को जबरदस्ती बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश क्या करेंगे तो क्या होगा? वो सप्रेस करेगा, रिवोल्ट करेगा, विरोध करेगा, अपने सामने जवाब देगा। तो वही हुआ, जब ट्राइबल बहुत ज्यादा परेशान हो गया ब्रिटिशर्स से, तो दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, वॉइस रेज करना शुरू करी। नंबर 1 रिवोल्ट हुआ कोल रिबेलियन 1831-32 में, देन हुआ संथल्स रिबेलियन 1855 में, ओरियन रिबेलियन, और सबसे जो फेमस जो डिटेल में दे रखा है दैट इज मुंडा रिबेलियन। इस मुंडा रिबेलियन को उल्गुनन और ग्रेट टिम्बुलेट कहते हैं। ग्रेट टिम्बुलेट और उल्गुनन का मतलब होता है ग्रेट रिवोल्ट, हाई अपराइजिंग, तब उसको नाम दिया जाता है। तो ये जो रिवोल्ट हुआ बहुत ही लार्ज लेवल पे हुआ। अब इसको मुंडा रिबेलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट वाज स्टार्टेड बाय बिरसा मुंडा। इस रिवोल्ट के हेड थे बिरसा मुंडा, तो उन्होंने ये स्टार्ट किया। अब बेसिकली मुंडा की किसके खिलाफ लड़ाई थी? सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं, they started their raising their voice against these traders and money lenders. Ultimately what they want to remove Britishers, traders, money lenders from their land. They want to snatch their land, they want to get their land back from the Britishers. और मुंडाज ने अपने लोगों को उकसाया कि जाओ ब्रिटिशर्स से जाके अपनी जमीन छीन लो, बट अल्टीमेटली they were दिस रिबेलियन फेल्ड, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने और जोर शोर से इस रिवोल्ट का जवाब दिया। बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया एंड सून आफ्टर दैट ही डाइड। ठीक है, इस रिबेलियन को तो दबा दिया ब्रिटिशर्स ने, खत्म कर दिया, वापस अपने अंदर पावर लिया है, बट अल्टीमेटली जो एक प्रभाव था, जो एक छाप छोड़ दी मुंडाज ने ट्राइबल पीपल्स के ऊपर, तो वो उनका जो आवाज है ब्रिटिशर्स, वो कंप्लीटली सप्रेस दबा नहीं सके और कंटिन्यूअसली वो लोग रिवोल्ट करते रहे। इसके बाद और रिवोल्ट्स खड़े होते रहे। तो अल्टीमेटली दिस इज योर चैप्टर। आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चन आंसर्स सून at 11 o'clock. Okay students, thank you.